دوستو، ایک حافظ قرآن لڑکی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے آخرکار ایک عجیب و غریب جانور کیوں بن گئی؟ آخر اس پر اللہ کا اتنا دردناک عذاب کیوں آیا کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت کیا غلطی کرتی تھی؟ پیارے دوستو، وہ گناہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک ضرور رہیے گا۔ گزارش کریں گے کہ خاص طور پر ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں اس واقعے کو مکمل ضرور سنیے گا، کیونکہ اس واقعے میں ان کے لیے ایک بہت بڑا سبق اور آگاہی ہے۔ دوستو، پاکستان کے دورد علاقے میں عبدالکریم اپنی بیوی رقیہ اور 1 سال کی بیٹی جنت کے ساتھ رہتا تھا۔ عبدالکریم بہت ہی نیک رحم دل انسان تھا۔ وہ ہر روز صبح فجر کی نماز کے بعد ندی سے مچھلیاں پکڑ کر لاتا اور انہیں بازار میں بیچ کر اپنا اور اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کا پیٹ پال رہا تھا۔ عبدالرحمن کی بیوی رقیہ بہت ہی لالچی اور سخت دل تھی۔ ایک دن عبدالکریم اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں سوچ رہا ہوں آج ندی کنارے نہ جاؤں اور گھر پر بیٹھ کر آرام کر لوں۔ اس کی بیوی غصے میں بڑبڑاتے ہوئے بولنے لگی، کیا تمہیں کبھی سر درد ہوتا ہے، کبھی پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، ہر وقت کام نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہو؟ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس کی بیوی غصے سے بولی، ٹھیک ہے، مت جاؤ، آج میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں، میں گھر کا کوئی کام کاج نہیں کروں گی، صرف اور صرف آرام کروں گی۔ اس کا شوہر نرمی سے بولا، اچھا ٹھیک ہے، تم ناراض مت ہو، میں کام پر چلا جاتا ہوں۔ عبدالکریم نے پانی کے اندر مچھلیاں پکڑنے والا جال جیسے ہی پھینکا، وہ باہر نکالا تو اس کی نظر کے سامنے ٹوکری پر پڑی جس میں ایک بچی ہوتی ہے۔ عبدالکریم ندی سے ٹوکری باہر نکالتا ہے۔ عبدالرحمن ادھر ادھر دیکھتا ہے، آخرکار یہ بچہ نہ جانے کون چھوڑ کر چلا گیا۔ بچے کو ٹوکری میں ڈال کر ندی میں کس نے چھوڑ دیا؟ اب عبدالکریم کو وہاں آس پاس کوئی دکھائی نہ دیا۔ اس نے سوچا، یہ بچہ اپنے گھر لے کر چلا جاتا ہوں، یہ تو بچہ یہیں مر جائے گا۔ وہ بچہ زور زور سے رو رہا تھا۔ عبدالکریم جلدی سے اپنے گھر میں چلا گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، رقیہ جلدی دیکھو میں کیا لے کر آیا ہوں۔ رقیہ بچی کی رونے کی آواز سن کر وہ دیکھتے ہی کہنے لگی، یہ کہاں سے بچی اٹھا کر لے آئے ہو؟ کیا تکلیف ہے؟ کیوں شور مچا رکھا ہے؟ اوپر سے تم جلدی گھر آ گئے ہو اور یہ کون سی نئی مصیبت اٹھا کر لے آئے ہو؟ ابھی بازار جاؤ، کب پیسے لے کر آؤ گے؟ عبدالرحمن کہنے لگا، تمہیں بس ہر وقت پیسوں کی پڑی رہتی ہے، اس چھوٹی سی معصوم بچی کو تو دیکھو، جس کو بھی کسی نے ٹوکری میں ڈال کر ندی میں چھوڑ دیا۔ رقیہ غصے سے کہنے لگی، جس کا بچہ ہے، اگر اس نے چھوڑ دیا ہے تو تم اسے یہاں اٹھا کر کیوں لائے ہو؟ عبدالکریم اپنی بیوی سے کہنے لگا، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اگر میں اسے گھر نہیں لاتا تو کیا وہاں ندی میں مچھلیوں کا چارہ بننے کے لیے چھوڑ دیتا؟ رقیہ غصے میں کہنے لگی، اس بچی کو مچھلیاں کھائیں یا کوئی جانور کھائیں، اس مصیبت کو اپنے گھر کیوں نہیں، میں کبھی نہیں رکھوں گی۔ عبدالکریم نے جب بیوی کے منہ سے یہ کچھ سنا تو وہ شدید غصے میں آ گیا، کیونکہ عبدالکریم نے ایک نیک انسان اور اس کا دل بھی بہت نرم تھا۔ کہنے لگا، بس بہت ہو گیا، میں آج کے بعد تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گا، بہت جلد تمہاری منمانی ہو چکی، اب تم میری ایک بات دھیان سے سنو، یہ بچی اب اسی گھر میں رہے گی اور جنت کے ساتھ ہم بھی اسے پالیں گے، اور اس کے بارے میں اب کچھ مجھ سے دوبارہ کوئی بات نہیں کرنی۔ رقیہ نے پہلی بار شوہر کو اس طرح غصے میں دیکھا اپنے ساتھ بات کرتے ہوئے تو وہ بہت زیادہ گھبرا گئی اور خاموشی سے اس بچے کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہو گئی۔ عبدالکریم نے بہت ہی پیار سے اس معصوم بچی کا نام سکینہ رکھا۔ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ جنت اور سکینہ دونوں بڑی ہو گئی۔ ایک دن سکینہ عبدالکریم سے کہنے لگی، ابو جان، کیا میں بھی آپ کے ساتھ ندی میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے جا سکتی ہوں؟ عبدالکریم سکینہ کی یہ بات سن کر مسکرانے لگا، کیوں بیٹی، کیا تمہیں بھی مچھلیاں پکڑنا سیکھنا ہے؟ سکینہ نے کہا، جی ابو جان،
मैं भी आपकी तरह मछुआरा बनना चाहती हूँ। अब्दुल करीम सकीना से कहने लगा कि बेटी, अब तुम बहुत छोटी हो, अभी तुम अपनी बहन जन्नत के साथ खेलो कूदो और इसकी हर चीज़ की फ़िक्र मत करो। जब बड़ी हो जाओगी तब मेरे साथ चलना। इतने में रुकैया अपने शोहर से आकर कहने लगी, जाना ही चाहती है तो तुम क्यों नहीं जाते? इसे भी अपने साथ ले जाती हूँ। अच्छा, ले जाते तो अच्छा है, आपका काम भी जल्दी हो जाया करेगा। और अब्दुल करीम अपनी बीवी से कहने लगा, मुझे जन्नत और सकीना को अगर कोई भी काम सिखाना होगा मैं खुद सिखा दूंगा, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। रुकैया और सकीना को ज़रा भी पसंद नहीं करती थी जब रुकैया सकीना को ज़रा भी पसंद नहीं करती थी। जब वो बड़ी हुई तो किसी ने जब वो बड़ी हुई थी, किसी ने कभी भी इससे प्यार की नज़र और माँ की नज़र से नहीं देखा। वो तो बस अपने शौहर की मजबूर करने से असे इसे शौहर के मजबूर करने से इसे घर में रखी हुई थी, लेकिन वहाँ अपने शौहर की वजह से मजबूर थी। एक दिन अचानक अब्दुल करीम की मौत हो गई। चंद जन्नत और सकीना बाप की मौत की खबर सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। रुकैया ने अपनी बेटी जन्नत को अपने गले लगा लिया और कहा, बेटी, तुम्हारे बाप के साथ हमारे साथ यहीं तक था, अब तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। जन्नत बेटी अपनी माँ को रोते हुए कहने लगी, अम्मा, अब हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? अल्लाह ने हमारे सर से हमारी छत ही छीन ली, इस घर का गुजारा किस तरह होगा? इसकी माँ ने कहा, सकीना ना अपने बाप की जगह है, ना मछलियाँ पकड़ने वाला लाया करेंगे, इसकी तो अपने अब्बू से मछलियाँ पकड़ना सीखा है। सकीना अपनी माँ की ये बात सुनकर रोते हुए कहने लगी, हाँ अम्मी जान, क्यों नहीं, मैं हूँ ना, मैं खुद अपने अब्बू जान की जगह काम करूँगी और फ़िक्र मत करें। रुकैया सकीना से कहने लगी, बस बस, ज़्यादा प्यार दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तुम भी जाओगी काम करने के लिए, और कौन जाएगा? बाप मरने के बाद काम काम करवाती और मछलियाँ पकड़ने, नदी से पानी भरने का काम भी सकीना को ही करना पड़ता, लेकिन इसे खाना हमेशा हमेशा की बारी थोड़ा सा मिलता। एक दिन जब सकीना पानी लेने के लिए गई, वहाँ अपने बाप को याद करके बहुत रो रही थी। अब्बू जान, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे आपकी बहुत याद आती है। मुझे आज पता चला कि इस घर में मुझे आपके सिवा कोई भी प्यार नहीं करता था। लेकिन आपके जाने के बाद माँ मुझे खाना भी ठीक से नहीं देती। मैं नमाज़ पढ़कर हर रोज़ अल्लाह से दुआ करती हूँ, मेरे अब्बू जान मेरे साथ वापस आ जाएँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता? मैं क्या करूँ? आप मुझे कोई रास्ता बता दें। लेकिन इसे कोई जवाब नहीं मिलता। वो वहीं रोते-रोते घर आ जाती। फ़ातिमा जैसे ही घर आई, इसकी माँ गुस्से से इसको कहने लगी, आ गई महारानी, नदी से पानी लाने में इतना वक़्त लगता है? सकीना माँ से कहने लगी, माँ, पानी भरकर मटके भारी होते हैं, इसलिए मैं आहिस्ता-आहिस्ता चलते-चलते आती हूँ ताकि पानी गिर ना जाए। इसकी माँ कहने लगी, बस बस, अपनी बकवास बंद करो, कोई भी काम ठीक से नहीं करती तुम, और ऊपर से इतना खाना खाती हो। सकीना अपनी माँ से कहने लगी, माँ, खाना तो आप मुझे आधे पेट का भी नहीं देती और ऊपर से बातें भी सुनाती हो। खाना खाने को मिलता है, सकीना की बात सुनने को मिलता है। सकीना की बात सुनकर इसकी माँ को बहुत गुस्सा आया और कहने लगी कि मेरे सामने ज़ुबान चलाती हो, मैं तुम्हारे अच्छे से खबर लेती हूँ, तब जाकर तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आएगा। इस जालिम औरत ने इस मासूम और बेसहारा बच्ची पर इतना जुल्म किया और इसे मारा कि यहाँ तक कि इसके सर से खून बहने लगा। जन्नत ये सब देखकर पास बैठी मुस्कुरा रही थी। दूसरे दिन फजर की नमाज के बाद हाँ, सकीना दुआ करते हुए अल्लाह ताला के सामने बहुत रोई, फिर रोते हुए उठकर नदी के किनारे चली गई। इस दिन सकीना हसबे नदी किनारे से पानी लेने के लिए गई। सकीना वहाँ पर अपना ज़ख्मी सर पकड़कर बहुत ज़्यादा रो रही थी। इतने में नदी के पास एक अल्लाह वाले बुज़ुर्ग आ रहे थे। इसने जब सकीना को देखा तो सकीना की तरफ बढ़े और कहा, बेटा, क्या मुझे आप पानी पीने के लिए मिलेगा? सकीना जल्दी से मटके से पानी लेकर आई और अल्लाह वाले बुज़ुर्ग को पानी पिलाने लगी। पानी पीने के बाद अल्लाह वाले बुज़ुर्ग ने
सकीना के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मुझे पानी पिलाया, इसके बदले में मैं तुम्हें क्या कुछ देना चाहता हूँ। सकीना बुजुर्ग से कहने लगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग। सकीन किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। सकीना कहने लगी, नहीं, मेरे अब्बू जान ने मुझे सिर्फ यही सिखाया है कि हमें किसी से मदद बिना किसी लालच के करनी चाहिए। सकीना के माथे पर बहता हुआ खून देखकर अल्लाह वाले बुजुर्ग ने सकीना से कहा, बेटी ये तुम्हारे माथे पर क्या हुआ है? कि बेटी ये तुम्हारे माथे पर क्या हुआ? इतनी बात सुनकर फिर रोने लगी और अपने दुख की सारी कहानी अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग को सुना दी। अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग ने जब ये यतीम बच्चे की दास्तान सुनी तो इसका दिल भी भर आया और वो सकीना से कहने लगा, बेटी परेशान मत हो, अल्लाह ताला नेक बंदों के साथ होता है। इस नदी के पास एक झोंपड़ी है, मैं वहाँ रहता हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में ये देखकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि तुम पर तुम्हारी माँ इतना जुल्म करती है। वहाँ अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग सकीना से कहने लगे, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह से दुआ देता हूँ कि आज के बाद तुम्हारी आंखों में जो भी आंसू निकालेगा, जो भी तुम्हें परेशान करेगा, जो भी तुम्हें तकलीफ देगा, जिसकी वजह से तुम्हारे आंसू बहेंगे, इसकी आवाज़ हमेशा के लिए सूअर की आवाज़ ही निकलेगी और अल्लाह ताला तुम्हारी आवाज़ में एक ऐसी तासीर पैदा कर देंगे कि तुम जब भी कुरान की तिलावत करोगी, जब भी तुम कुरान को खोल कर इसको पढ़ोगी तो तुम्हारे कुरान की तिलावत सुनकर हर कोई अपने दुख को भूल जाएगा। इतना कहकर अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग अपने रास्ते से वापस चले गए और सकीना भी ये बात सुनने के बाद अपने घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में इसका दिल करता कि वो कुरान पढ़ने की तिलावत करे। जैसे वहाँ अपना मुंह खोलती तो इसके मुंह से कुरान की तिलावत निकलना शुरू हो जाती। वो खुद ही अपनी कुरान की तिलावत सुनकर खफा हो रही थी। जैसे ही तमाम परिंदे इसकी तिलावत को सुन रहे थे, हर कोई खामोशी से मस्त मगन हो गया। हर कोई अपना दुख भूला जा रहा था। जैसे ही इसकी जैसे ही इसकी जैसे इसकी निगाह घर पर पहुंची तो इसकी इसकी माँ गुस्से से कहने लगी, आ गई महारानी, कहाँ लगा दी इतनी देर। सकीना हम मुस्कुराते हुए अपनी माँ से कहने लगी, माँ आज मुझे नदी के किनारे एक अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग मिले थे। वहाँ अल्लाह की बहुत ही इबादत गुजार थे। अगर वो मिट्टी में हाथ डाल दे तो सोना बन जाता है। सकीना की माँ बात सुनकर कहने लगी, क्या बकवास कर रही हो, ऐसा भी हो सकता है? जाओ जाओ घर के काम करो, देखो सारा घर गंदा हुआ पड़ा है। सकीना किचन में जाकर काम काज करने लग गई, खाना बनाने लग गई और बर्तन वगैरह धोने लग गई। बर्तन धोते धोते इसके हाथ से कांच का गिलास टूट गया। जैसे ही गिलास टूटा तो इसकी बहन पास खड़ी थी, इसने फौरन इसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया और सकीना रोने लगी। इसकी आंखों से आंसू आना शुरू हो गए। जैसे ही इसकी आंखों में आंसू आए, वो मारने वाली बहन जन्नत की आवाज़ बदल चुकी थी। कुछ कहने के लिए अब मुंह खोलती तो इसकी ज़ुबान से सूअर की आवाज़ निकल रही थी। इसकी माँ भी ये देखकर हैरान रह गई और सकीना से कहने लगी, बताओ तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? इसने कहा, माँ आज मुझे अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग मिले थे, उन्होंने अल्लाह से दुआ की तो ये सब कुछ हुआ। माँ उन्होंने कहा, जब भी तुम्हें कोई मारेगा, तुम्हारे आंसू जैसे ही उस इंसान की वजह से गिरेंगे, इंसानों की आवाज़ की बजाय इसके गले से सूअर की आवाज़ निकलेगी। इसकी माँ यह सुनकर खामोश हो गई, मगर फिर भी वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकती थी। इसने इसको मारा और घर से निकाल दिया। सकीना बाहर एक दरख्त के नीचे जाकर लेट गई और रोते हुए इसने कुरान पाक पढ़ना जैसे ही वहाँ से लोग गुजरना शुरू हुए थे, इसके सारे गम दुख दर्द भूल गई। सकीना